Hello guys, we'll be waiting thoda और for more people to join. With your name. Yeah. ऑनलाइन पेमेंट हो सकती है तो We'll be starting in a few more minutes, waiting for more people to join. And for those who are not able to log in or जिसके भी friends log in नहीं कर पा रहे हैं ID में, so they can watch us live through our Facebook handle of NSS Sri Venkateshwara College.
Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Okay, let's wait for few more minutes. I guess 2 or 3 Yeah. people to join in. And meanwhile, you all can type in your answers for how is the quarantine, not quarantine exactly, but how is this entire situation treating you? It's a very good question. Beta, I think I've got so much of time to myself, and there was lots of time to reflect and lots of time to do what I really want to do, you know. So, Very true. yeah, again, the choice is not to, I mean, everybody in the house are told, we will not use the word bore. बोर नहीं कहेंगे, उदास हो रहे नहीं कहेंगे. Everyone is responsible to do whatever they want to do to keep themselves healthy, happy, and very healthy, you know. So, yeah, so I have lots to read and lots to reconnect with you know, few children who keep on getting in touch with me. Few of the special needs children also are in touch with me. So we keep talking to each other because I feel that social distancing hai, emotional distancing so nahi hai na. True, very true. Yeah, so in fact, you know, I mean, the whole day is quite busy. I keep myself very busy and I'm very happy over that. That's okay. That's wonderful. That's so Because rightly these are said. the, That's so yes, rightly said. yeah. Because ये भी तो temporary है ना time, तो इसको भी इसके लिए adjustment तो करनी ही करनी है बेटा, definitely True. करनी. आप क्या करते हैं बच्चे? What are you doing? Okay, I'm in my final year and I'm pursuing BCom honors from Sri Venkateswara College. Oh wow, okay, great. Manish, आप क्या करते हैं? Ma'am, I am in my second year and I am also pursuing BCom honors from Sri Venkateswara College. Okay, very good. So nice to meet you, young kids. Always a pleasure. Yeah. Well, I've been associated with kids last 40 years. It feels very good. Yeah. I don't feel like saying that I'm actually officially retired, but कहने का मन नहीं करता है क्योंकि आप बच्चे जब तक मेरे साथ हो तो मैं रिटायर्ड कैसे हो सकती हूँ? Exactly. You're still connected. So Yeah, very well connected with my kids. Yes, very well connected with my kids. And I can have the vibes from you. अब ये सोशल डिस्टेंसिंग खत्म होगा तो जरूर जल्दी से जल्दी आप बच्चों को मिलेंगे. राइट या तो आपकी क्लासेस ऑनलाइन होती हैं बच्चों? यू आर हैविंग ऑनलाइन क्लासेस? Yes, ma'am. yes, a big struggle. Yeah. I know how much you guys must be missing the campus. True. Yeah. I think it's the struggle for both the sides, for teachers as well as the students. Exactly. इनफैक्ट टीचर्स के लिए थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल है. आप लोग तो ये सब कुछ बहुत अच्छे से हैंडल कर लेते हैं, पर हर टीचर को सीखना पड़ा है. डेफिनेटली उन्होंने सीखा ही है, वो टीचर्स हैं तो बहुत बढ़िया करेंगे. बट yes, that's what we have to be show our gratitude to them because of the efforts they are putting in this quite a bit. Yeah. Very true. Okay. Let's start the session, Ayushi, or we should wait? Yeah, I guess we can start. There's just 1 more minute. Then we Okay. break. It will be 12:40. Yeah, okay.
आपकी ऑर्गेनाइजेशन बच्चों के साथ काम कर रही है, स्कूल गोइंग किड्स एंड कॉलेज गोइंग आल्सो, या? हाँ जी, मतलब even we are helping their parents as well, like ration के respect में, and many other things are being taken care of in the Wow, wonderful. part. So Yeah, wonderful. So wonderful. I think we can start, Manish. Yeah, we can start. Yeah. So आज का कार्यक्रम मैं एक उद्धरण से शुरू करना चाहूंगा। परिंदों को मंजिल मिलना यकीनन, ये फैले हुए इनके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। बिल्कुल सही कहा मनीष, बिल्कुल सही कहा। चलिए अब इसी खूबसूरत कहावत के साथ हम आज का कार्यक्रम आगाज करते हैं। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल सबको। आज मैं आयुषी भसीन और मेरे साथी मनीष रोहिला एनएसएस श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। So our today's session, Seher the Dawn of Life, will be bifurcated into two segments, where we will be commencing our session with Miss Veena Oberoi, wherein she will be seen unleashing her cognizance in respect of mental health, and in the later part, we will be encouraging and reviving our musical buds in a stunning performance by Arunima Khotyal. शुरू करने से पहले आप सबसे दरख्वास्त है कि आप अपना माइक ऑफ रखें और अपने प्रश्नों को चैट बॉक्स में डालें। आपके प्रश्नों का उत्तर बात के अंत में दिया जाएगा। धन्यवाद। पहले भाग में हमारे समक्ष श्री वीना ओबरॉय हैं, जो 1979 से दिल्ली प्रशासन के साथ एक शैक्षिक व्यवसायिक सलाहकार रही हैं, दैट इज एजुकेशनल वोकेशनल काउंसलर। उन्हें समावेशी शिक्षा को लागू कराने के लिए दिल्ली राज्य समन्वयक के रूप में लगभग 2 वर्षों के लिए प्रतिनियुक्त किया गया था। उन्होंने तनाव प्रबंधन, क्रोध प्रबंधन, माता पिता के मार्गदर्शन से संबंधित कई कार्यशालाओं को संबोधित किया और उसमें भाग लिया। We are exceedingly honored to have you here, ma'am. Thank you so much. Thank you so much. मेरा आप सभी बच्चों को बहुत प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और गुड आफ्टरनून। और आज हम लोग इस समय पे जुड़े हैं जबकि परिस्थितियां थोड़ी सी अलग हैं, नॉर्मल रूटीन से हटकर हैं। तो आई थिंक हर एक इंसान थोड़ा सा डरा हुआ है, थोड़ा सा घबराया हुआ है, थोड़ा सा मानसिक तनाव को महसूस कर रहा है। अब जब भी कोई, ये एकदम बहुत नेचुरल बात है कि जब कुछ भी हटकर होता है, कुछ नया होता है, कुछ डिफरेंट होता है और कुछ थोड़ा सा दर्दनाक भी होता है, सडनली इस चीज ने पूरे, मुझे कोरोना कहना ही नहीं था, मैंने कहा कि सब जगह आप बच्चे यही सुन रहे हैं, लेकिन इस वायरस ने पूरे वर्ल्ड को ग्रिप किया। धीरे 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 ये बढ़ता चला गया। पहले हम सुनते थे कि हाँ वहाँ चीन में ऐसा हुआ, इटली में ऐसा हुआ, फिर सुना कि हाँ इंडिया के केरल में कोई 2-3 केसेस पाए गए, और फिर सुना कि दिल्ली में भी हुआ है। तो पहली बार तो थोड़ा सा मन घबराया, फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने सबको इकट्ठा करा, बताया, समझाया और हमने उन चीजों को फॉलो करा। आई थिंक जो भी आजकल की आज की जो परिस्थिति है, वो भी हम कुछ नियमों को पालन करते रहे, तब तक हम अपने आप को बचा सकते हैं। लेकिन हर एक को कुछ ना कुछ अपने लाइफस्टाइल में बदलाव करना पड़ा। अभी ये बच्ची से मैं बात कर रही थी इतिहास में, वी एज एल्डरली पीपल आर स्टिल यूज्ड टू बीइंग एट होम, बट आप बच्चे जो कैंपस में बिल्कुल परिंदे घूमते थे अपने दोस्तों को मिलने के लिए, वो एक्साइटमेंट आपकी, वो आपका टू लुक फॉरवर्ड दैट टुमारो इज अ न्यू डे टू गो देयर। आई अंडरस्टैंड हर चीज में आपको बदलाव लाना पड़ा, और अब आज की तारीख में आपकी सोच होनी चाहिए हर दिन एक नया दिन है, पर फिर भी उसको प्लान कीजिए, फिर भी उसको अपनी प्लानिंग को नहीं छोड़ना है। तो बच्चों आज मैं बहुत सिंपल, आप कहोगे कि आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो या स्कूल के बच्चे हो,
ग्रोइंग एज के बच्चे हो, और इस वक्त जब आपकी मेंटल ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ, बायोलॉजिकल ग्रोथ, सब तरह की ग्रोथ हो रही है, तो पर्सनालिटी भी बहुत अच्छे से डेवलप हो रही है, जो आपको पता ही नहीं चलता। कुछ आदतें हमारी धीरे धीरे पक्की होती जाती हैं। तो बच्चों, आज हम मिलकर कुछ ऐसी बातें करते हैं जिसमें बहुत ही वो सरल बातें हैं, लेकिन आपको उस पर ध्यान देना है। तो सबसे पहला ध्यान को मुझे आपको आपकी तरफ ही दिलाना है। फोकस आपका आपकी तरफ करना है। जब समय मिला है तो पहले फोकस किस पर होना चाहिए? स्वयं पर होना चाहिए। तो बच्चों, मैं हमेशा कहती हूँ, हर बच्चे को कहती हूँ कि आप अपने आप को कितना रिस्पेक्ट करते हो। रिस्पेक्ट योर सेल्फ, वैल्यू योर सेल्फ, अपने आप को एप्रिशिएट करना सीखना है। सेल्फ क्रिटिसिज्म में नहीं जाना है। स्वयं को देखना है, ये मेरी क्या क्वालिटीज है, इनको मैं और अच्छा कर सकता हूँ, ये थोड़ी सी मेरी लिमिटेशंस है। बुराइयां शब्द में यूज नहीं करती। आई ऑलवेज से दिस इज माई लिमिटेशन, मैं ऐसा नहीं कर पाती, बट कोई बात नहीं, इसको मैं सुधारने की कोशिश करती हूँ। और इसी तरह से मैं हर एक दूसरे बच्चे को, वो किसी भी तरह का, किसी कास्ट, किसी कल्चर, छोटा है, बड़ा है, नाटा है, लंबा है, मैं उसकी रिस्पेक्ट करूँ। बिकॉज हर कोई इंसान जो आपके साथ मिलता है आपको कुछ ना कुछ जरूर सिखाता है। तो ये एक लर्निंग प्रोसेस थ्रू आउट चलता है। तो पहले हम स्वयं को पसंद करेंगे, फिर हम दूसरों को पसंद करेंगे, फिर अपनी अपनी कहीं भी जो भी हमारी अच्छाइयां हैं उसको और बढ़ाते चले जाएंगे। तो इस क्वालिटी को बच्चों आप जरूर दोहराओ। आप जरूर शीशे के सामने खड़े होकर जब आप अच्छा काम करते हो तो अपने पीठ के ऊपर थपथपाहट दो, एप्रिशिएट करो। और कहीं आपसे कुछ गलत काम हो जाता है, सबसे होता है, तो उस गलती से भागना नहीं, उस गलती को सामने रखकर मानना। आई एम श्योर आप सभी बच्चों ने भाग मिल्खा भाग मूवी देखी होगी। मिल्खा सिंह भाग, में गलत बोल रही हूँ नाम, मिल्खा सिंह भाग मिल्खा भाग, राइट, ओके। उसका एक सीन मैं कभी नहीं भूली। जब वो ओलंपिक्स रेस में हार जाते हैं तो वो शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप को खूब जोरदार थप्पड़ मारते हैं। उस समय उन्होंने क्या किया? उस समय उन्होंने अपनी गलती का जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो किसी और को नहीं दी, स्वयं पर ली। और जहां तक मेरा ख्याल है उसके बाद वो कोई रेस नहीं हारे। तो बच्चों, हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पहली चीज मैंने कहा रिस्पेक्ट फॉर योरसेल्फ, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, देन कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमें अपने हर एक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वयं लेनी है। जब तक आप छोटे थे माता पिता हाथ पकड़ कर चलाते थे, आपको बहुत सी बातें बताते थे, लेकिन आज आप इस सिचुएशन में हो कि जो आपके संस्कार हैं वो आपके बचपन से चले आ रहे हैं, जो आपने जाने अनजाने में सीखे हैं। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, लेकिन आज आप उस सिचुएशन में हैं जब अपने संस्कार आप स्वयं बना रहे हैं। आज जब आप सच बोलते हैं तो आप एक स्ट्रॉन्ग इंसान बनते हैं। जब आप झूठ बोलते हैं, जब आप अपनी कुछ भी कमजोरी को उसको छुपाते हैं, तो मेंटली आप वीक बनते हैं। तो आई एम श्योर मेरे सभी बच्चे बहुत स्ट्रॉन्ग बनना चाहेंगे। तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, अपने एक्शन जो भी आप कर रहे हैं, और जानिए इस बात को कि जो भी बात आज आप कर रहे हैं कॉन्सिक्वेंसेस को साथ साथ चलेंगे ना, तो आपके एक्शन आपकी मानसिक स्थिति को बढ़ावा देते हैं, आपकी मेंटल हेल्थ को, आपका बिहेवियर, बिकॉज आपकी सोच, आपके विचार, आपका बिहेवियर, सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। अब इसके साथ ही आती है आपकी बॉडी। तो बॉडी और माइंड का तो बहुत बड़ा आपस में जोड़ है। तो आइए अब हम ये देखते हैं कि आप अपनी बॉडी का कितना ध्यान रखते हैं, और उसकी शुरुआत मैं करूंगी सोने से। और जब बच्चे बढ़ रहे हैं, स्कूल के बच्चे और कॉलेज के भी बच्चे, तो जो पहले जो कहावत थी अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, वो खत्म होती जा रही है। तो आपको ध्यान देना है कि जो नींद है, स्लीप है, इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, बिकॉज उस टाइम पर हमारा माइंड
रिलैक्स करता है। मेंटल हेल्थ के लिए हर बच्चे को मेरे हिसाब से, जो थोड़ा सा बॉडी साइकिल हर एक का फर्क होता है, पर मेरे हिसाब से 7 से 9 घंटे की जो नींद है वो बहुत बहुत आवश्यक है। उस टाइम पे आप रिलैक्स करते हैं, अगर कोई सपना भी देखते हैं तो भूल जाते हैं, दिमाग आपका शांत होता है, तभी सो सकते हैं। अगर दिमाग में कुछ कुछ चल रहा है तो नहीं सो सकते हैं। और सोशल मीडिया बहुत बढ़िया है, आज हम भी सोशल मीडिया के थ्रू ही आपके साथ जुड़े हुए हैं। अपने घरों में बैठकर मैं अपने बच्चों के साथ बात कर सकती हूँ, उनको मैसेज दे सकती हूँ। लेकिन बेटा, इसके साथ साथ अगर आप चाहें कि रात को अब कोई छूट है, जितने देर मर्जी आपके पास में स्मार्टफोन्स हैं, लैपटॉप्स हैं, आप सोशल मीडिया के साथ जितनी देर तक जुड़ेंगे, आपका दिमाग उतना ही चल रहा है, लेकिन उसकी कार्य करने की क्षमता तो नहीं बढ़ सकती ना बेटा। उसको शांति चाहिए। एक शांत मन जो होगा वो बहुत सी परिस्थितियों का सामना कर सकता है, लेकिन एक अशांत मन जो होगा वो परेशान हो जाएगा। अगर आपने रात को सही तरीके से नहीं नींद पूरी करी है, then in the morning you are not fresh to attend any of your classes. So be sure कि इस समय जब हर चीज पे मैंने आपसे कहा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने उठानी है और आपके पास में एक आप अलग तरीके की एक डिफरेंट जिंदगी आज की तारीख में हम जी रहे हैं। हम भी कई बारी इस एज में आकर कई बारी आज तो थोड़ा सा रात को लेट हो गए, तो सुबह हम भी थोड़ी सी देर से उठे तो कहते हैं भगवान जी सॉरी आज थोड़ी सी देर हो गई, लेकिन दूसरे दिन कोशिश यही होती है कि रात को जल्दी सोए। थोड़ी सी बात और कहूंगी इस बारे में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूथ के लिए। एक आदत डालिए कि सोने से पहले कम से कम 1 घंटा पहले आप टीवी, टेलीविजन, फोन कुछ भी ना देखें। उस सबसे हटके मन को शांत करिए। मन को शांत करना बहुत जरूरी है। आपके मन, जब आपका मन शांत होगा तो बहुत बढ़िया नींद आएगी। कुछ अच्छा सा पढ़ें। रीडिंग की आदत जो है वो बिल्कुल खत्म होती जा रही है। आप कहते हैं हमें तो सब कुछ नेट पे मिल जाता है। आज मैं कहूँ, आप रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में कुछ जानते हैं? हाँ मैम, मैं अभी आपको बताती हूँ, गीतांजलि भी नेट पर है और वो शांति निकेतन के बारे में जो पूछो आप, मैं आपको घंटे में सब इंफॉर्मेशन दी। पर किताब को उठाकर पढ़ने में अपना ही आनंद है, उसके साथ जुड़ने में अपना ही आनंद है। वो हमारा सबसे बड़ा साथी। बुक्स आर द बेस्ट फ्रेंड। कई बार हमारे मन में बड़े विचार उठते हैं। बेटा, मैं अपने एक्सपीरियंस से कहती हूँ, मुझे आज तक अपने सवालों के जवाब मेरी किसी भी किताब के पन्ने में लिखे हुए मिलते हैं। तो प्लीज थोड़ी सी आदत डालिए। और उसके साथ साथ मन को शांत करने के लिए आपके पास कोई धुन भी हो सकती है, आप कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है कि आप पसंद करते हैं। जो भी चीज आप पसंद करते हैं जिससे आपको रिलैक्स फील हो, यू नो बेस्ट। मैं आपको क्या बताऊंगी कि आप ये करें, नहीं, आपको खुद सोचना है, जानना है अपने बारे में। आप जानते हैं बेहतर कि मुझे अपने मन को 1 घंटा पहले से प्रिपेयर करना है कि अब मैं सोने जा रहा हूँ, राइट? तो इस चीज पर ध्यान दीजिएगा कि स्लीप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकल एक्सरसाइज उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो भी, और ये सब कुछ हमारा रिलेटेड है बॉडी और माइंड के साथ बच्चों। तो आप सब, मुझे पता है, बहुत बहुत कॉन्शियस हैं आजकल। खूब बच्चे साइकिलिंग कर रहे हैं, बहुत से बच्चे मुझे दिखाई देते हैं अर्ली मॉर्निंग। बहुत अच्छा लगता है कि आप साइकिलिंग कर रहे हैं, आप घर में वर्कआउट कर सकते हैं, ऑनलाइन में भी देखकर भी अपने जो जिम वगैरह अभी तक थोड़ा सेफ तो नहीं है जगह, वहाँ आप ना जाएं तो बेटर है। हर नियम को पालन करें, ये भी बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अभी मैंने बात करी आपके साथ पहले आपके बारे में, फिर थोड़ी सी बॉडी के बारे में। बॉडी में थर्ड चीज आती है बॉडी को लुक आफ्टर करने में, आपका न्यूट्रिशन, आपका खाना, आप क्या खा रहे हैं। प्लीज वो भी कुछ टाइम सभी बच्चों के थोड़े थोड़े से बदल गए हैं, तो उन टाइम्स को दोबारा से ठीक करिए।
देखिए कि आप दिन में एक बार कम से कम दूध ले रहे हैं कि नहीं ले रहे, पानी कितना पी रहे हैं। पानी हमारे लिए बहुत जरूरी है। पानी जो आपको पता होगा कि पानी की मात्रा कम होने से हमारी कंसंट्रेशन भी कम होती है, माइंड पे बहुत इफेक्ट पड़ता है, ब्रेन पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो पानी जितना ज्यादा आप पिएंगे उतना बेहतर है। और आज के टाइम में साथ साथ में आज का टाइम भी आपको याद दिला रही हूँ, थोड़ा सा गर्म पानी, थोड़ा सा अदरक वाला पानी, थोड़ा सा हल्दी वाला पानी, बिकॉज ऑल दैट इज गुड फॉर यू। थोड़ा सा लेमन वाटर, जितना लेमन ले सकें, ये सब आपके लिए आज के लिए ही नहीं आगे के लिए भी बहुत अच्छा है। तो अपने आप अपने खाने का ध्यान कौन रखेगा? आप स्वयं। और उसके बाद में मैं बात करना चाहूंगी पूरी सी विवेक बुद्धि की, दैट इज इंटेलेक्ट। माइंड बॉडी, बॉडी एक ऊपर, माइंड से ऊपर है इंटेलेक्ट, विवेक बुद्धि। जब कभी भी हम किसी भी समस्या में पड़ते हैं या कोई नई सिचुएशन क्रिएट होती है, ऐसी परिस्थिति जिसपे किसी का भी बस नहीं, तो शांत मन से अगर हम उसका हल निकालेंगे तो वो जरूर निकलेगा। मन को शांत करके जब आप विचार करेंगे तो वो विचार आपको हमेशा कोई ऐसा रास्ता दिखाएंगे जिससे कि आप मानसिक तनाव के ग्रिप में ना आए, राइट? तो यू मस्ट नो दैट कामली अगर आप बैठेंगे। और इसके साथ रिलेटेड है हमारी ब्रीदिंग। ब्रीदिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। शांत बिल्कुल जो अपनी ब्रीदिंग को, इसमें मैं कोई आपसे मेडिटेशन की बात नहीं कर रही हूँ, सॉरी, मैं आपसे बात कर रही हूँ सिर्फ अपनी ब्रीदिंग को वॉच करने की। मन को शांत करने का सबसे आसान तरीका है कि अपनी ब्रेथ को वॉच करिए। सांस लेते समय 1 2 3 4 की गिनती मन में बोलिए और सांस छोड़ते समय 1 2 3 4 5 6 7 और 8 की गिनती बोलिए। आपका मन धीरे धीरे शांत हो जाएगा। नॉर्मल ब्रीदिंग, आपको कोई तेज नहीं सांस लेना। इसके साथ जुड़ी हुई एक छोटी सी बात मैं आपके साथ करूंगी। 2000 में, तब तक शायद आप बच्चे होंगे या कहीं बहुत छोटे होंगे या नहीं होंगे, हमारे गवर्नमेंट स्कूल में, सर्वोदय स्कूल में एक सर्कुलर आया जस्ट बिफोर 1 डे बिफोर दी समर वेकेशन। तब हमारे को 2 महीने की छुट्टियां होती थी और सब बहुत लुक फॉरवर्ड करते थे। और उस 2 महीने में कोई असाइनमेंट नहीं होता था, कुछ नहीं होता था। 2 महीने आपके हैं, इमेजिन। या तो 1st of May to 1st of July we were like free birds and we were so happy and excited, and suddenly लास्ट डे ऑफ वर्किंग डे पर हमें मैसेज आता है कि कल से एक सेमिनार शुरू हो रहा है सब टीचर्स के लिए और मैंडेटरी है कि सभी ने आना। और ये सेमिनार है 21 दिन का और उसमें क्या होना है ये कुछ नहीं बताया हमको, राइट? और एज काउंसलर्स हम लोग वहाँ पर रिसोर्स पर्सन थे। हमें बताया गया कि आप फलां जगह पे पहुंच जाइए, उसके बाद जो भी होगा हम आपको वहीं आकर बताएंगे। कुछ युवा वाले प्रोग्राम कर रहे हैं। टाइम हम वहाँ पहुंचे तो 250 टीचर्स, इमेजिन 250 टीचर्स, कुछ मुझसे बड़े, कुछ मुझसे छोटे, कुछ मेरी बराबर की उम्र की, वहां खड़े, एजिटेटेड, एंग्री, क्योंकि छुट्टियां उनकी खराब हो गई कि सुबह 8 बजे रिपोर्ट करिए और 1 बजे तक आपको रहना ही रहना। प्रिंसिपल बेचारे परेशान, क्या करें। और मेरे साथ 4 रिसोर्स टीचर्स और थे, वो पहुंचे नहीं बिकॉज ढूंढ रहे होंगे जगह। मैं लकीली बहुत फास्ट थी कर, तो उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं हॉल में सब टीचर्स को ले जाते हैं। मैंने कहा आप कुछ उनको ठंडा पिलाइए पहले, गर्मी का टाइम है, फिर सोचते हैं। तो आप मानेंगे नहीं कि जब हॉल में 250 टीचर्स नाराज, गुस्सा, सब बोल रहे हैं और उन्होंने कहा कि आपका माइक हमने ऑन कर दिया है, अब आप जाइए।
थैंक यू वेरी मच। और मैं जैसे जैसे चल रही थी सचमुच अपने भगवान जी को याद कर रही थी कि आप प्लीज मेरे अंग संग सहाय हो जाइए, आज तो बहुत बड़ी परीक्षा है। अब आप मान सकते हैं कि मैं 250 टीचर्स को कैसे बोलूंगी कि आप चुप कर जाइए, मुझे सेशन शुरू करना है। और क्या सेशन शुरू करना है मैं तो जानती ही नहीं हूँ, क्योंकि अभी तो हमारी सिर्फ ये इंफॉर्मेशन थी कि आपके पास जब आप पहुंचेंगे तो बुक्स वगैरह सब पहुंच जाएंगी कि आपने क्या करना है। तो मैंने उनसे कहा, रिक्वेस्ट करी, मैंने कहा कि भगवान जी ने बिल्कुल मेरा साथ दिया और मैंने कहा कि चलिए अब ये सेशन जो है हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज से शुरू करते हैं। और आप मानिए कि within 5 minutes everybody was quiet and that was just a simple breathing exercises they followed with me. 250 people, in fact the teacher, the principal came out of her room to say कि एकदम से शांति कैसे हो गई, इतना शोर था कि वो घबरा के अपने पसीने पहुंच के वहां बैठी हुई थी। और जब वो आकर उन्होंने देखा कि सब अपनी जगह पर बैठे हुए हैं और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस चल रही हैं, एंड बिलीव मी बच्चों कि जो 5 मिनट में जब वो शांत हो गए, आप ये सोच सकते हैं कि साउथ दिल्ली में ये सेशन हो रहा था और कई लोग वेस्ट दिल्ली के आए हुए थे, कई लोग फरीदाबाद से आए हुए थे, एंड दे वर सो एंग्री। But when they started watching their breath, when they started getting hold of their mental thought process, they realized that we have to go through it because this is the order by the government. और जब हमें ये करना ही है तो हम इसी चीज को खुशी खुशी पूर्ण करें। और वो 10 मिनट के बाद उन्होंने हमारी सारी बातें सुनी और उसके बाद उन्होंने एक रिक्वेस्ट करी प्रिंसिपल मैम से। तब तक मेरे बाकी जो कलीग्स थे वो भी आ गए थे, तो उन्होंने कहा कि हम 4 ग्रुप्स बनाएंगे। उन्होंने कहा आप 4 ग्रुप्स बना दीजिए, बस पहली जो फर्स्ट 10 मिनट्स हैं हम इसी हॉल में बैठकर ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना चाहिए। दे लव्ड इट सो मच। उनको और कुछ नहीं था बेटा, मैंने कोई डिफरेंट तरीके का प्राणायाम नहीं उनके साथ कराया, कुछ भी नहीं कराया, सिर्फ उनको उनकी सांसों पर ध्यान देने के लिए था। तो बच्चों ये इतनी इम्पोर्टेंट चीज है, इतनी इम्पोर्टेंट चीज है, मैंने इसलिए आपको बताया कि अगर ये 250 एजुकेटेड माइंड और वो भी ऑल सो वेल एजुकेटेड, सो वेल एक्सपीरियंस्ड पीपल को शांत कर सकते, तो हम आज से अगर ये आदत डालेंगे तो बहुत बढ़िया आदत है। सुबह 5 मिनट, दोपहर को जब थके हुए होते कहीं पर भी बैठ के आंख बंद करने, आप सिर्फ अपनी ब्रीदिंग को, इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग को वॉच करें। और इसकी एक बहुत बड़ी खासियत मैं आपको बताऊंगी जो मैंने खुद महसूस करी और मैंने जब बाकी और मेरे साथियों से भी पूछा तो ये बात जरूर बताऊंगी बच्चों कि जब आप अपनी सांसों पर ध्यान दे रहे होते हो, उसको महसूस कर रहे होते हो, तो आपके माइंड में थॉट्स नहीं आते। इट इज सो इम्पोर्टेंट, थॉट्स नहीं आएंगे, थोड़े थोड़े इनिशियली एक आध आएगा, उसके बाद वो आएगा ही नहीं। राइट बच्चों, तो आप इस चीज को जरूर ट्राई करें बेटा। अपनी मेंटल हेल्थ को जब हमने इम्प्रूव करना है तो देखिए लाइफ में आज ये हुआ है, कल कुछ और होगा, परसों कुछ और होगा। हम हर एक 365 दिन में हर समय खुश नहीं रह सकते, परिस्थितियां बदलती, लेकिन उन बदली हुई परिस्थितियों में अगर हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं कि मुझे आज परेशान नहीं होना है, परेशानी की बात मैं इसे डिनाई नहीं कर रही हूँ। बहुत से लोगों ने बहुत कुछ खोया है बेटा इस टाइम में, मैं डिनाई नहीं कर रही हूँ, वो परेशान है, लेकिन फिर भी हमें इन परिस्थितियों के साथ समझौता करने के लिए एक हेल्दी माइंड की बहुत जरूरत है। और आप बच्चे, जब आपका मानसिक विकास इस समय हो रहा है तो बहुत कुछ आप कर सकते हो। आपके अंदर जो पोटेंशियलिटी है, इंसान का जब कभी जो भी टेंशन एक्चुअली होती है वो क्यों होती है, जब हम कई बार कहते हैं, जो मैंने कहा बोर शब्द वोकैबुलरी में नहीं होना चाहिए, तो क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि आप कुछ बेहतर करने की काबिलियत रखते हैं और वो कर नहीं पा रहे, तो मन अनरेस्ट हो रहा है, घबरा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, लेकिन उसको वर्बली नहीं कह रहे। तो हर बच्चा, मेरे पास जब काउंसलिंग के लिए बच्चे आते थे
तो कुछ बच्चे कहते थे मैं उनसे कहती थी अच्छा तुम बताओ तुम्हारे कितने नंबर आए, मैथ से घबराते थे या साइंस से घबराते थे, तो वो कहते थे मैम 50 तक आ जाएंगे। तो 50 आ जाएंगे तो बहुत बढ़िया बात है, पर 50 आ जाएंगे? हाँ मैम आ जाएंगे। तो उनके पेरेंट्स कहते थे आप क्या कर रहे हो? ऐसे उस बच्चे ने खुद को जज किया है, आप और मैं नहीं जज करेंगे, वो स्वयं जज कर रहा है। तो अगर वो 50 कह रहा तो मेरी मानिए उसके 50 जरूर आए। एंड बिलीव में बच्चों, उन बच्चों के 50 की जगह 52 या 55 आ जाते, बिकॉज दैट इज व्हाट दे जज। और अगर एक बच्चा मैथ्स और साइंस नहीं कर पा रहा है तो डजंट मीन कि उसके और फील्ड नहीं है। एक बच्चा, यही बच्ची की बात बता रही हूँ जो पेरेंट्स मेरे पास आए आंखों में आंसू भरे हुए कि ये बच्ची तो पास ही नहीं होगी, हमने इसको 6 के 6 सब्जेक्ट में ट्यूशन लगा दी। तो सॉरी, आपने तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही ले ली। चलिए बात करते हैं आपके बच्चे से। जब उससे बात करी तो उसने कहा मैं मैथ्स में 40-45 से ज्यादा नहीं ले पाऊंगी, पर बाकी सब्जेक्ट में मैं पास हो सकती हूँ, मेरे को इतनी सारी ट्यूशन नहीं चाहिए। And believe me बच्चों, she got through maybe 10th में maybe with probably 48% marks, but उसके बाद में उस बच्ची ने different course लिया, fashion designing में गई, and she was the first one in her class who started earning a handsome amount. Because जो आपकी दो चीजें हैं, आपका विश्वास तो है ही है, उसके साथ साथ आपकी एबिलिटी, आपका इंटरेस्ट, आपकी योग्यता। मैं आपको आज ये सब बातें इसलिए बता रही हूँ कि ये सब बातें अगर आप अपनी रुचि और योग्यता के साथ साथ चलकर कुछ भी चयन करते हैं तो आप उस पर आपको फुल 100% आपको सक्सेस मिलेगी। तो जो ये टाइम हमारे पास है इसलिए हमें स्वयं को पहचानना है, मेरी क्या पोटेंशियलिटी है, मैं कितना कर सकता हूँ, मेरी क्या लिमिटेशन से भागना भी नहीं है, उसको फेस करना है, बच्चों। तो आज ये सब कहने के बाद मैं ये जरूर आपसे कहूंगी कि मानसिक तनाव को मैं डिनाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन उसको एक्सेप्ट करते हुए अगर हमारा जिस तरह से छोटे छोटे पॉइंट्स मैंने आपको बताए, आप अगर उन पॉइंट्स पर ध्यान देते हुए अपनी मेंटल हेल्थ को आप इम्प्रूव करते हैं तो हर सिचुएशन से हम धीरे धीरे निकल सकते हैं। और इससे हटकर एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपको फिर भी लगता है कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको किसी तरह के सिम्टम्स अपने में दिखाई देते हैं, जैसे हथेलियों में हर समय पसीना रहना, सर भारी रहना, रात को काफी देर तक जागना और भूख ना लगनी या बहुत ज्यादा खाना और इस तरह से, या फिर किसी से मिलने की इच्छा ना करनी, तो बच्चों आप आगे आकर अपनी मदद करिए, अपने आप को प्लीज हेल्प योरसेल्फ टू लर्न टू हेल्प योरसेल्फ एंड आल्सो मीट समबडी। कोई मेंटर होगा आपका, कोई आपके घर के बड़े होंगे, उनके साथ बैठकर बात की। उल्टा मैं तो ये चाह रही हूँ कि आज हमारा यूथ जो है वो मानसिक तनाव अपना छोड़कर दूसरों को मदद करे, और बहुत से कर भी रहे हैं बच्चे। आप बच्चे तो मेरे सामने एक एग्जाम्पल होगी, मुझे कितनी खुशी हुई आप सबसे जुड़कर, ये मैं ही जानती हूँ। तो और बच्चों को भी अपने ऊपर अपनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी, अपने पेरेंट्स के भी, अपने से छोटे बहन भाइयों को भी एकदम पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ जाना है, पॉजिटिव बातें करनी है, पॉजिटिव लोगों से मिलना है। हमें पता होना चाहिए कि हाँ हमारे कंट्री में क्या हो रहा है या बाहर क्या हो रहा है, लेकिन हर समय हमें स्ट्रेसफुल न्यूज चैनल्स को नहीं देखना है, बिल्कुल भी नहीं देखना है। सुबह की शुरुआत हमने भगवान के आगे, उस परमात्मा के आगे, उस ऑलमाइटी कह लीजिए, एक पावर कह लीजिए जो हमारे साथ जुड़ी है, जो हमारे अंदर एक आत्माराम बैठे हैं आलती पालती मारकर, जो हर समय हमारे साथ हैं। तो कोई भी कठिनाई आए जरा दरवाजा खटकाइए, आत्माराम जी बाहर आ जाएंगे और आपकी मदद करेंगे, राइट? कि इस वक्त हमें क्या करना है, लेकिन मन को शांत करना बच्चों आपने सीखना है। तो पॉजिटिव जो आपके आसपास कुछ ऐसे से भी मिलते हैं, आपका सपोर्ट सिस्टम है, बहुत बढ़िया लगता है फ्रेंड्स।
बहुत अच्छे लगते हैं। आपको भी, आपके साथ बात करते करते मैं अपने कैंपस में पहुंच गई, right? And it was a pleasure always. But at the same time, you must choose. You must not come under the peer pressure. The last point, but not the least, smoking, drinking, drugs. ये आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते, ये आपको मॉडर्न भी नहीं बना सकते। ये सिर्फ और सिर्फ एक कार्य कर सकते हैं, वो है आपके मन को, आपके माइंड को डल कर सकते हैं। तो आपने अपने माइंड को डल नहीं होने देना। आपने अपने आसपास देखना, अगर कोई भी बच्चा इस बुरी आदत का शिकार होता है तो बच्चों उसको बाहर निकालना है, उसकी मदद करनी है, राइट? जब हम, अब ये बच्चे तो आप तो वैसे ही इस संस्था के साथ जुड़े हुए हो, आप जानते हो कि जब हम अपने से हटकर किसी की भी मदद करते हैं तो एक पावर है, एक सुपर पावर है बेटा, उसको कोई भी नाम दे दो, पर एक पावर है, वो झट से हमारे साथ आकर खड़ी हो जाती है और हमें और एक्स्ट्रा एनर्जी देती है ना? मानते हो ना इस बात को? तो बच्चों, ये सब छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है अपनी मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करने की। आई थिंक मैं यही अपनी विश्राम देती हूँ, और अभी आपका शायद कुछ प्रोग्राम है तो उसमें मैं चाहूंगी, मेरी भी रिक्वेस्ट होगी कि मुझे बहुत पसंद था बच्चों के साथ ये गीत गाना, हम होंगे कामयाब, और मैं गा नहीं सकती हूँ, बट आई लव दिस सॉन्ग, तो ये जरूर गवा दीजिए 2 लाइनें मेरी तरफ से। और शुभाशीष है, आप सबको शुभ आशीर्वाद है आज के लिए भी और दिनों के लिए भी, कि हम डट कर इसका मुकाबला करेंगे और इसमें से जरूर बाहर। It was really an amazing and enlightening session, and the way you ended by saying that when we help someone, it is like a priceless emotion that we get. And I think so I and all the people that are present here, they can relate to this sentence so much that it's even something that can't be expressed. So the feeling that we get by helping someone. Exactly. अभी मैं अब ज्यादा समय आपका नहीं लेना चाह रही, पर फिर भी 2 लाइनें बिल्कुल। विजुअली चैलेंज बच्चे जुड़े हैं बेटा, you'll be surprised, उनमें से मतलब आप name the colleges of Delhi. They've gone to Stephen College, they've gone to SRCC, they've gone to Lady Shri Ram College, they've gone to Khalsa, any name that. And ये बच्चे, जिस बच्चे की 1-2 बच्चों की बात करती हूँ, जो स्टीफन कॉलेज में बच्चा गया है, वो फिजिकली चैलेंज भी है एंड विजन वाइज 100% challenged है. And this child passed out of Stephen, went to Chandigarh to do his post-graduation, came back to Delhi, did his MPhil, and right now he's lecturer with the government sector. That's so great. And it's all because of the mentally these children were so strong. जब वो मुझसे बात करते हैं, मैं भूल जाती हूँ कि इनको कोई प्रॉब्लम थी है. I used to worry about them when I used to meet them कि हॉस्टल में आपको ड्रॉप करना है. And believe me, background के टाइम पर I must mention he didn't have his parents. His grandmother left him in the home. And he only survived because of his mental health was so strong. So strong. The other kids also, they're working in banks as managers. And back home, family background उनका क्या है? Parents farmers हैं. 12th class तक उनको homes ने पढ़ाया. उसके बाद उन्होंने कहा, thank you very much, हम आपके लिए इतना ही कर सकते हैं. लेकिन ये बच्चों ने हार दिया. It's amazing how much you learn from them. You see, I've come across children with Down syndrome. They're doing so well for themselves. With physically challenged children, one of my child, he walks on his knees, absolutely on his knees. And the other day I called him up. I said, "How is life?" He said, "Beautiful." Best part is, कभी complain ही नहीं करते. जब भी मेरा फोन करूँ या वो मुझसे बात करते, खूब हंसकर बोलते हैं. ये इनकी इतनी बढ़िया क्वालिटी है. तो ऐसे बच्चे क्या हो रहा है आजकल? He says, "मैम, 5 बच्चे घर आ रहे ट्यूशन लेने के लिए और 2 को मैं ऑनलाइन दे रहा हूँ."
This is so great to hear. Amazing. All because of mentally they are very healthy and Exactly. strong. उन्होंने अपनी तकलीफों को सामने रख के ये नहीं कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ, कुछ भी हो सकता है. It's that simple. तो बच्चों, आई होप जो भी बच्चा इस हमारी बात को सुनेगा तो छोटी छोटी बातों पर ध्यान देकर अपनी मेंटल हेल्थ को बढ़ाएगा और सुबह उठकर जरूर एक बार अपना ग्रैटिट्यूड शो करेगा कि आज जो भी हो रहा है उसके बावजूद भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं अपने लिए भी और दोस्तों. थैंक यू. Yes, guys, I request all of you to type down your queries in the chat box, and we all would be more than happy to take them up. Ma'am, there's a boy, Toyesh, and he's asking for any book recommendation that you can give. Any book recommendation for reading? For reading? Yeah. Oh, बेटा आप कोई भी ऑटोबायोग्राफी लीजिएगा, किसी भी पर्सन की जो आपको कभी भी आपने जिनके बारे में पढ़ा हो, फैसिनेट हुए हो, तो आप उनके बारे में पढ़िएगा. ऑटोबायोग्राफी से बहुत बहुत कुछ पता चलता है. और अब्दुल कलाम जी की तो कोई भी बुक उठा लीजिएगा. तो lots for children, lots for children. Great, great. Thank you so much, ma'am. Ma'am, it's our pleasure to have you enlist us. And thank you so much, ma'am. Just the way you molded this testing time That's into nice. asking us to self-introspect ourselves, and that too in a very sweet manner. So, ma'am, your experience, your rich experience is like one of the best insight that we can get from you. So, thank you so much, ma'am, for having for My coming here. pleasure always, my pleasure always. Over to you, Thank you, Aditi. ओके, तो अब मैम आप प्लीज हमारा अगला इवेंट जरूर अटेंड करिए, क्योंकि आपका जो सॉन्ग है जो आप चाहती हैं सुनना वो हम जरूर कोशिश करेंगे कि वो हो सके. जी, जी. बढ़ते हैं हम अपनी अगली पेशकश की तरफ. अरुणिमा कोटियाल एक दिल्ली आधारित कलाकार है जिन्होंने अपनी मनोज्ञ आवाज से काफी दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया है. ये एक सक्रिय कलाकार हैं जो दिल्ली विश्वविद्यालय संगीत परिक्रमा में प्रसिद्ध हैं और किरोड़ीमल कॉलेज की संगीत समाज की भी अध्यक्ष हैं. Her passion for Western music has grown over the years since she was just 9 years old. From the very beginning, she has been inspired and motivated by her mother, who is just highly passionate about music. She is currently training under Svetlana Radishkevich, who is a renowned pianist and a vocal coach. Yeah, so ma'am, the stage is all yours. Hello there. Hi everyone. Thank you so much for introducing me like this. It was very overwhelming. So hi, I am Arunima, and firstly I'd like to start off by thanking NSS of Sri Venkateswara College for giving me this great opportunity to be able to perform in front of you guys. I'm really, really glad. Thank you so much. So I would like to start with just telling a few basic things about myself. I'm a Western vocalist, and during this quarantine, I've started covering songs and I've started uploading my music online. Before that, I never really got the time to do it because I'm part of the music society in Kirodimal as well. So मुझे इतना time नहीं मिलता था कि मैं, because we have like practices and everything, तो मुझे इतना time नहीं मिलता था कि मैं you know अपने songs upload कर सकूँ या even record कर सकूँ for that matter. And when I started uploading songs, I sort of realized that I did not know that the kind of songs that I listen to, because what I used to do is मुझे जो गाना बहुत अच्छा लग रहा है, जो मुझे बहुत अच्छा feel करवा रहा है, जो मुझे बहुत happiness और एक happy vibe दे रहा है, I used to sing those songs and I would upload them. And I didn't realize that a lot of people used to, get in like it. The songs used to impact them in a very good way. And I didn't realize it until I started uploading my covers. So since then, this is kind of my motive, that I want to cover songs and I also write originals, but I like to sort of upload songs mainly because I want, people go through a lot, especially during this pandemic and generally in life as well.
लोग बहुत कुछ they're dealing with a lot of stuff, कोई किसी के साथ कुछ होता है, छोटे छोटे failures होते हैं life में. So my point is that I want to upload songs जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी मिले and वो अपनी सारी प्रॉब्लम्स कुछ टाइम के लिए भूल जाएं and for some time बस वो मेरी वीडियो देखें और वो गाना सुने and relate कर पाए. So I have a habit of being lost in my own world. I have a small fictional world inside my head, and जो मैं songs गाती हूँ, they're somewhat connected to that. So I just want to spread happiness, and I want to share that happy feeling with you guys. So since I said that I have a habit of getting lost in my own fictional world, the first song that I'll be doing is Kho Gaye Hum Kahan by Prateek Kuhad. So I hope you like it. रूह से बहती हुई धुन ये इशारे दे, कुछ मेरे राज तेरे राज आवारा से, खो गए हम कहाँ रंगों सा ये जहां, खो गए हम कहाँ रंगों सा ये जहां, तेरे मेरे रास्ते हैं जादुई इमारतें हैं, मैं भी हूँ तू भी है यहाँ, सोई खोई पर्दों के सितारों के पंखों पे हम नाचते उड़ते हैं यहाँ, खो गए हम कहाँ रंगों सा ये जहां, हो हाँ हाँ हो So this was the first song, and this song is like very very close to me. It's because I hope I'm audible to you guys, right? Yeah, you Yes, are. yes. Yeah. So this song is like very 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 close to me because it says खो गए हम कहाँ रंगों सा ये जहां, and it's really beautiful. I can relate to it so much because whenever I'm really upset and I'm feeling very down, I listen to this and I'm in a different world जहाँ पे बस I have like really beautiful flowers and I have really nice clouds around me and rainbows and all of that. So I listen to it and I imagine that. Sometimes I sing it and I imagine that, and it's really good. So I hope I was able to convey what I am feeling with you people. Mhm. So the next song that I'll do is from this movie Love You Zindagi, and it's the title song of that movie. So yeah. जो दिल से लगे उसे कह दो हाय 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 हाय, जो दिल ना लगे उसे कह दो बाय 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 बाय, आने दो दिल में आ जाने दो, कह दो मुस्कुराहट को हाय 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 हाय, जाने दो दिल से चले जाने दो, कह दो घबराहट को बाय 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 बाय, love you zindagi, love you zindagi, love you zindagi, love me zindagi, कभी हाथ पकड़ के तू मेरा चल दे, कभी हाथ छुड़ा के मैं तेरा चल दूं, मैं थोड़ी सी मूडी हूँ
तू थोड़ी सी टेढ़ी है, क्या खूब ये जोड़ी है तेरी मेरी। आने दो दिल में आ जाने दो, कह दो मुस्कुराहट को हाय 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 हाय। जाने दो दिल से चले जाने दो, कह दो घबराहट को बाय 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 बाय। लव यू जिंदगी, लव यू जिंदगी, लव यू जिंदगी, लव मी जिंदगी। Okay, so this song is also really kind of close to me because it says what I like most about it. It says love you zindagi, so it's like you should love zindagi, and then it's also asking zindagi to, you know, it's saying love me zindagi. So I really like that ki, you know, you should love zindagi, but she's also asking at the same time ki mujhe bhi pyar karo zindagi. That's something I kind of really like. And the last song that I'll be doing is, I think most of you must have heard it. It's Khwabon Ke Parinde. It's from Zindagi Na Milegi Dobara. So again, like the other song, this one is like super duper close to me, especially I love that movie Zindagi Na Milegi Dobara, and I think all of us, जितने भी हम दोस्त वगैरह होते हैं, जितने भी, because I have a group of like, I have 2 best friends, so it's like I can relate to that movie a lot, and I think जितने भी लोग होते हैं, सब लोग अपने दोस्तों के साथ वो चीज करते हैं कि यू नो हम भी ट्रिप में जाएंगे, विल गो टू यूरोप, बिकॉज आई रिमेंबर हैविंग दीज कॉन्वर्सेशंस विद माय बेस्ट फ्रेंड्स ऑल द टाइम. लाइक हम अभी भी बोलते हैं कि यू नो ये कोरोना वगैरह ठीक हो जाए एंड विल गो एंड यू नो विल हैव सो मच फन. सो this song is so amazing, and I feel like whenever I'm traveling also I listen to it and I get that Hrithik Roshan वाली vibe. If you guys have noticed, वैसे ऐसे करता है हाथ निकाल के from the window, so I get that vibe, and I really like that as well. So yeah, I'll sing this one for you guys. उड़े खुले आसमां में ख्वाबों के परिंदे, उड़े दिल के जहां में ख्वाबों के परिंदे. ओ क्या पता जाएंगे कहाँ, खुली है जो पर कहे ये नजर, लगता है अब है जागे हम, फिक्रे जो थी पीछे रह गई, निकले उनसे आके हम. हवा में बह रही है जिंदगी, ये हमसे कह रही है जिंदगी. ओहो अब तो जो भी हो सो, उड़े खुले आसमां में ख्वाबों के परिंदे, उड़े दिल के जहां में ख्वाबों के परिंदे. ओ क्या पता जाएंगे कहाँ, याद है कल आया था वो पल जिसमें जादू ऐसा था, हम हो गए जैसे नए, वो पल जाने कैसा था. कहीं ये दिल की चादर भी तू जहाँ भी लेके जाए आरज़ू. ओहो अब तो जो भी हो सो, जो भी हो सो, उड़े जो भी हो सो.
This is so damn amazing. Thank you so I much. am really short on words to express how good we all are feeling right now. Thank you, Sonam. And you can also witness the other in the comment section. Everyone is showing their love and support for the songs that we have Beautiful. sang. Thank And you so much, everyone. really, thank you so much for treating our ears, ma'am. And your melodious voice just created such a soulful and Thank you positive so aura. much. And it's a Oh, I thank you great so guess thank we you. both of us, all of us, moved to that zone which you were talking about. I much. know. It's a good I'm so phase for happy. Shakya. I'm A so big happy phase for I could Shakya. do that through my music. I really love doing that. Like with me, it's like, there was a time when me and my best friend, we both were really upset. We were going through some bad phase and मैं कुछ TV show देखती थी and I used to feel very happy. तो मुझे 2-2 मिनट भी खुशी मिलती थी तो I used to just call her कि bro I'm really happy right now. मुझे थोड़ी सी happiness spread करने दे because we both were going through bad phase. So I really love doing that. I love making people happy through my music. Because I have created that world for myself, that fictional world. So I want everyone to visit it once or twice along with me. I love doing that. Beautiful, yeah. Wonderful voice, beautiful, Thank you so absolutely much, beautiful. ma'am. God bless, God bless. I think this is wonderful. Can I leave now, Bacho? Okay? Sure, sure, Yeah. sure, All ma'am. right. It Thank you, was ma'am. Bye. lovely Bye. having you. We'll be in touch. Yes, yes. Bye, Bacha. God bless. Bye. And Great. thank you so much, Arunima, for singing the songs and Thank the you so struggle. much We for can see having the me. struggle that you are sweating. So the struggle is all I don't real. know, for some reason I'm always sweating when I'm singing in front of people. It's always like that. I don't know why. Thank you so much for having Over me. to you, Ayushi. Had the best time, I guess. जो combination था एक अच्छी सी talk का जो वीना ओबरॉय मैम ने start करा and then उसके बाद ही ये songs and these are the songs I guess जो कि सबके common favorite होते हैं I Common think favorite hote. Yeah, best yeah, ones for us and okay we are getting song request I guess yeah. you sing any song for me star So, I mean, you guys can, if you like, stuff like this, you can follow me on my Instagram. You can also follow my YouTube channel. It's Arunima_Kotial for my Instagram, AROONEMA_Kotial. So, yeah. I mean, you can check out NSS Instagram page. They've tagged me there. So, yeah sure thank you so much Arunima. thank you so much for having me. Also, I would like to add for people who have joined in कि Veena Oberoi ma'am की जो mail ID है that will also be shared with you people on your personal email IDs and there you can share with her the problems that you were not able to share over here and that's pretty much about it. I hope you all had an amazing time. Please अपना feedback थोड़ा सा यहाँ पे भी दे दो. Great. Okay. Thank you so much, guys. Okay. Okay. We still are getting song requests. Great. Thank you so much, everyone, for joining in. Hope so. Sabki best start to you. You may leave if you want to. And also, if like Sejal is there, then we all can wish her happy birthday, Sejal. Yeah. A very happy birthday, Sejal. वीडियो ऑन कर सकती है. Hey, Hey. happy birthday. Hi. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. So, Project Head, how are you feeling right now? Great event you had.
Hunkara finally आवाज executed. आ रही है? Yes, yes. Amazing, amazing, amazing. बहुत मजा आया. Thank you so much. I want to say something. Can I turn on my mic? If the host allows you. And we have Shreyash. Okay, I've unmuted Aurum. I guess he wanted to say something. Yeah, go ahead, man. Yeah. Thank you so much for giving me this opportunity. The session was great, and thank you so much. Thank you. It's an honor to have you. That's so sweet of you. Thank you so much. It was lovely to hear voice apart from us. Okay. Guess now we can start leaving. Okay. कितने पार्टिसिपेंट्स बचे हैं? या तो अपना फोन छोड़ के चले गए होंगे. नहीं, डेडिकेटेड भी लग रहे हैं कुछ तो.